हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड दिस इज़ पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम स्प्राउट्स एंड हनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन आवर पार्ट 2 वीडियो वी स्टडीड what are the plant parts we use as a food. There are total 6 parts like root, stem, leaf, flower, fruits and seeds और उनके कुछ एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से रूट प्लांट हम खाते हैं, कौन कौन से स्टेम प्लांट हम खाते हैं, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स हम कौन कौन से प्लांट के खाते हैं. And then we studied all the animal products we use as a food, like we get milk from animals, we get eggs from animals and we get meat from animals. And the link for part 1 video and part 2 video is available in the description box, or you can see the playlist section of Mint Talk India channel's class 6th science. Today in this video we are going to study about one more animal product, that is honey, and one more important plant product, that is sprouts, and how to make sprouts in this video. But before we start, this is a small introduction about me which you can pause the screen and have a look. So first of all, we are going to do this activity given in your textbook to make the sprouts. For this activity, take some dry green moong dal seeds and pour little bit of water in the container. And you have to keep it aside for about 8 hours, or you can soak it overnight and come back in the next morning. Next morning you will see that the seeds have swelled up. वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, soft हो जाएंगे. तो आपको क्या करना है? You have to drain out the excess water. You can take a handkerchief and pour everything over it. और उसके बाद जब आप handkerchief में इन सारे seeds को पकड़ लेंगे अपने हाथ से, तो जो भी excess water होगा वो बाउल में आ जाएगा. Then you have to throw away this water. Then you can take little bit of water on your hands and wet the handkerchief. In your previous class 5th EVS, you have studied about germination of seeds. Seeds को germinate होने के लिए, sprouts होने के लिए water, air and warm temperature की ज़रूरत होती है. So do not keep it inside the fridge. Keep it outside in a cupboard or in a corner of your kitchen. Next morning when you will come and open the handkerchief, you will find that all the seeds have sprouted. यानी कि सभी seeds में से white color के structure बाहर आने लगेंगे. इन्हीं white color के structures को हम sprouts बोलते हैं. That is the beginning of a new life, beginning of a new baby plant. इसी seed को अगर आप soil में डालेंगे तो क्या होगा? ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है यही आगे चल के रूट बनेगा एंड देन बेबी प्लांट विल कम आउटसाइड ऑफ द सीड्स एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. द सेम एक्टिविटी वी कैन डू विद द बंगाल ग्राम ऑल्सो, लेकिन इस चने के सीड को स्प्राउट होने में 2 days भी लग सकते हैं क्योंकि ये सीड थोड़ा सा बड़ा होता है और ज़्यादा हार्ड भी होता है. नाउ स्प्राउट्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्दी. ये सभी एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. हम स्प्राउट्स को कच्चा भी खा सकते हैं, वी कैन ईट इट रॉ, और वी कैन बॉयल इट, add salt and a few spices and make a sprout chaat, and then also we can eat it. So how can we define a sprouted seed? The germinating seed at the initial stage when a white structure grows out from the seed, that is also called the radicle. These are called sprouts. तो इस सीड में से जो ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है ये आगे चल के रूट बनता है जो सॉइल को होल्ड करता है और तब जाके ऊपर का प्लांट स्टेडी एंड स्ट्रेट खड़ा रह पाता है. द प्लांट विच इज गोइंग टू ग्रो अप इज प्रेजेंट इनसाइड दिस सीड एज अ बेबी प्लांट. द स्प्राउट इज फुल ऑफ लाइफ. दैट इज वाई द स्प्राउट्स आर कंसिडर्ड टू बी सो हेल्दी. Why are sprouted seeds so healthy? Sprouted seeds are rich in nutrients. That is, they contain proteins, vitamins and minerals which makes us healthy and keeps us away from the diseases. Now let us study about one more animal product, and that is the honey. Do you know where the honey comes from or how it is produced? Honey is made by the honey bees. इसीलिए इनका नाम मधुमक्खी है. मधु का नाम honey और मक्खी का नाम bees. You must have seen honey bees buzzing around the flowers. हमेशा फूलों के आसपास इस तरीके की मधुमक्खी घूमती रहती है. तो ये एक्चुअली क्या करती है?
ये अपना खाना खाती है। द हनी बी टेक्स इट्स फूड फ्रॉम द फ्लावर। अब फ्लावर में ऐसा कौन सा खाना मौजूद होता है? फूलों के अंदर एक बहुत ही स्वीट जूस तरीके का चीज़ मौजूद होता है जिसे हम नेक्टर बोलते हैं, और ये नेक्टर इस मधुमक्खी का खाना है। और मधुमक्खी के मुंह में ऐसा स्ट्रॉ टाइप के पार्ट्स होते हैं जिसे हम प्रोबोसिस बोलते हैं। सेम टाइप का प्रोबोसिस बटरफ्लाई के माउथ में भी रहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम किसी जूस के ग्लास में स्ट्रॉ डाल के जूस को सक करते हैं, चूस लेते हैं, वैसे ही मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अपने मुंह में मौजूद इस तरीके के स्ट्रॉ जैसे बॉडी पार्ट जिसे प्रोबोसिस बोलते हैं, उनका यूज़ करके फूलों के अंदर का रस चूस लेती है, और इसी रस को नेक्टर कहा जाता है। The sweet substance which is present inside all the flowers is called nectar, and nectar is the food for some insects like the bees and the butterflies. और इसी नेक्टर से बनता है हनी। The honey bees suck the nectar from the flower through its mouth which is called proboscis and converts का मतलब बदल देती है, इसी नेक्टर को वो हनी में कन्वर्ट कर देती है and stores it in its beehive as its food for the future। क्योंकि साल भर तो फूलों का सीजन नहीं रहता, हर समय फूल मौजूद नहीं होते, तो पूरे साल भर इस मधुमक्खी को अपना खाना मिलता रहे, तो इसीलिए वो हनी को स्टोर करती रहती है अपने छत्ते में, जिसे हम इंग्लिश में बी हाइव बोलते हैं। बी हाइव इज अ स्ट्रक्चर मेड बाय ईदर बीज और ह्यूमंस ऑल्सो समटाइम्स इन विच बीज लिव एंड मेक हनी एंड स्टोर्स द हनी। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे इस मधुमक्खी ने जो बीहाव बनाया है ये हेक्सागोनल शेप के एक एक जगह होता है, और एक एक जगह पे वो इस तरीके के हनी को स्टोर करती जाती है। एंड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ बी हाइव ओनली ह्यूमंस कलेक्ट द हनी फॉर आवर फ्यूचर यूज। हनी इज मेड बाय द हनी बीज। तो आपने इस तरीके के मधुमक्खी के छत्तों को, दैट इज द बी हाइव्स, जरूर देखा होगा। Honey bees make their beehives in tall trees and sometimes tall buildings also। और ये दिखने में छोटे छोटे हेक्सागन शेप की तरह लिखते हैं। हेक्सागन शेप मतलब एक ऐसा शेप जिसके 6 साइड्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी शेप्स को जोड़ जोड़ के वो अपना बड़ा सा छत्ता बनाती है, और फिर इसके अंदर जो ये मक्खी अपने साथ नेक्टर को चूस के लाई थी, उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती है, और फिर इस हनी को इन बीहाइव्स के अंदर स्टोर करके रखती है। वैसे तो मधुमक्खियाँ मोस्टली जंगलों में बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर अपना छत्ता बनाती है, लेकिन आजकल मधुमक्खी के छत्तों को हम लोग ह्यूमंस भी आर्टिफिशियली बनाने लगे हैं। हम क्या करते हैं, एक वुडन फ्रेम लेते हैं इस तरीके का, और इनके आसपास थोड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता पहले से ही बना के देते हैं। तो इनका जब स्मेल इन हनीबीज को मिलता है तो यहाँ पे बहुत सारी हनीबीज आ जाती है, पूरा छत्ता बड़ा करके बना लेती हैं, और यहीं पे अपने पूरे कॉलोनी के साथ, ग्रुप के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। हनी बनाना स्टार्ट कर देती है, हनी स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, एग्स देती है, और फिर उनके बच्चे भी यहीं पे बड़े होते हैं। और फिर जब ये पूरा हनी कोम हनी से भर जाता है तो ह्यूमंस, जैसे आप ये हाथ देख सकते हैं ना, ह्यूमंस आते हैं, इनका हनी बी का छत्ता लेके जाते हैं, और इसमें से हनी को हम बाहर निकाल के खाते हैं। एंड दैट इज वाई हनी इज सो वेरी स्वीट एंड इट इज फूड फॉर द ह्यूमन ऑल्सो। ये स्वीट इसलिए है बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द स्वीट जूस ऑफ द फ्लावर नेक्टर। और ये जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिससे ह्यूमन बीइंग ने अपने लिए हनी बनवाया मधुमक्खियों के द्वारा, इस साइंस को बोला जाता है एपीकल्चर। द साइंस ऑफ लर्निंग बी कीपिंग, rearing them and keeping them to get the honey is called apiculture। तो इस तरीके का आपने अपने 4th स्टैंडर्ड के EVS अनीता एंड द हनीकॉम्ब में भी पढ़ा था। अनीता एंड द हनी बीज चैप्टर में भी पढ़ा था कि अनीता ने भी किस तरीके से मधुमक्खियों को पाल कर उन्हें रियर करके हनी बनवाया, और फिर उसको बेच के उसने पैसे कमाए। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये जो फोटोग्राफ दी हुई है, पहले वाले फोटोग्राफ में एक मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियां घेर के बैठी हुई हैं, और जब ये मधुमक्खियां उड़ जाती है अपने छत्ते से तब वो दिखने में कुछ ऐसी होती हैं। सो दिस इज द बी हाइव विदाउट द बीज, यू कैन सी इन द पिक्चर। Then it is written in your textbook, flowers and their nectar
मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। सिर्फ विंटर सीजन के आसपास ही बहुत बड़े पैमाने पे फूल हमें उगते हुए नजर आते हैं। आपने देखे होंगे हर जगह फूल ही फूल हमें नजर आते हैं, ज्यादातर विंटर सीजन आते आते। लेकिन गर्मियों के टाइम पे फूल थोड़े कम उगते हैं, तो इसीलिए मधुमक्खी क्या करती है, उनको तो खाना पूरे साल भर के लिए चाहिए। बीज मेक द हनी एंड स्टोर देयर फूड फ्रॉम द नेक्टर, दैट इज द हनी, फॉर देयर यूज all through the year. And when we find such a beehive, we मतलब humans collect the food stored by the bees as honey and use it for ourselves. इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, ये मधुमक्खियों के साथ बिल्कुल भी चीटिंग नहीं है, because bees are very hard working. जितनी जल्दी हम उनका हनी ले लेते हैं, वो उतनी भी जल्दी अपना हनी वापस बना के वापस स्टोर कर लेती हैं। सो हियर यू हैव टू ऑल्सो लर्न सम एडवांटेजेस ऑफ हनी। हमारे लिए हनी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एक तो ये बहुत ही मीठी है, हमारे लिए फूड का काम करती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हनी इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ many kind of sugars, minerals and enzymes which is good for our health. Honey is also used in many type of medicines क्योंकि हनी में medicinal properties होती हैं। Honey along with tulsi leaves can cure cough and cold. तो ये दादी माँ का नुस्खा बहुत साले समय से हम सुनते आए हैं, हमारी मम्मी बताती आई हैं, और इसीलिए हनी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 3 वीडियो। आगे हम टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। ये तो हुई हमारी बात, लेकिन जानवर क्या खाते हैं ये जानेंगे हम अपने पार्ट 4 वीडियो में, जिसका लिंक आपको बहुत ही जल्दी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट सेक्शन में तो सीरियल वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, we will meet very soon. Thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.